ത്തിലേക്ക് ജമ്മുകാശ്മീരിലെ നൌഗാം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ അട്ടിമറി സാധ്യതകൾ തള്ളി ജമ്മുകാശ്മീർ പോലീസ് പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായതെന്നും മറ്റു ഊഹാപോഹങ്ങൾ അനാവശ്യമെന്നും ജമ്മുകാശ്മീർ ഡിജിപി നളിൻ പ്രഭാത് പ്രതികരിച്ചു. A huge quantity of explosive substances, chemicals and reagents were also recovered from Faridabad on 9th and 10th of November 25. This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of police station Nowgam. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime-fighting photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged, and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. JNK Police stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. ഇന്നലെ രാത്രിയുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ 9 പേർ മരിച്ചു, 29 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഫരീദാബാദിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. സ്ഫോടനത്തിൽ സമീപവാസിയും കൊല്ലപ്പെട്ടു. പോലീസിനെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. നൌഗാമിൽ നിന്ന് ന്യൂസ് 18 തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. हम इस वक्त नौगाम में मौजूद है और यहाँ पर आप जो ये घर देख रहे हैं, थोड़ा सा साथी से गुजारिश करूँगा, ये मकान आपको दिखाए. ये बेसिकली इनका कहना है कि मोहम्मद शफी परे है जो गुज़श्ता रोज़ पुलिस स्टेशन में ही मौजूद है. हालांकि ये टेलर का काम कर रहे थे और पुलिस स्टेशन में पुलिस की कुछ मदद कर रहे थे, और जब ये धमाका हुआ है वो उस वक्त वहीं पर थे, क्योंकि उनके यहाँ मातम है, यहाँ पर पूरा इलाका जमा हुआ है. तो इस इलाके में क्योंकि कल जब शाम को ये धमाका हुआ तब मोहम्मद शफी परे जो पेशे से टेलर है वहीं पे मौजूद थे, पुलिस का कुछ काम कर रहे थे और धमाके के वक्त वहीं पर वो मौजूद थे. यहाँ पर मातम है, कुछ लोग हैं मेरे साथ. मुझे अपना नाम बताइए आप. शिबिर अहमद. शिबिर साहब, मुझे बताइए क्या है इनका नाम, किस तरह से आपको लगता है ये वहीं पर थे और क्या काम करते हैं? इसका नाम है मोहम्मद शफी परी. सुबह से इनको दुकान पे आया था कि हमको थाने पे काम है, कुछ बैग बनाने हैं, उसके लिए कुछ बैग बनाने हैं, आप हमारे पास थाने पे आ जाओ. तो पूरा दिन का काम ले लिया वहाँ पर. फिर शाम के टाइम वो घर आया था कुछ कपड़े लेने के, कुछ ठंड मौसम था इसीलिए. फिर उनको वापस बुलाया कि हमको ये काम आज ही करना है, ये काम हमको पूरा करने दो आज. हमें कुछ पैकिंग बने, उसके लिए बैग बना के दे दो. पुलिस को मदद कर रहे थे? हाँ, उनका मदद कर रहे थे. उनका वो बैग चला रहे थे वहाँ पर, उनकी सिलाई हो रही थी बैग की. उसी के कारण 11:20 पे धमाका हुआ. फिर उसके साथ वो कुछ रहता हुआ ही नहीं, नॉट ट्रीटेबल आ रहा था उसके बाद.
तो अब ये कंफर्म हुआ उनकी मौत हुई है, शहीद हुए? हाँ वो PCR में इस टाइम। तो आपको जानकारी मिली है घर वालों को? घर वालों को जानकारी मिली है, हमको 11 बजे का टाइम दिया है उनको आने का। बिल्कुल। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हालांकि ये चश्मदीद भी थे, इन्होंने कल शाम को मदद भी की है जब धमाका हुआ था। इन्होंने अपना नाम बताइए। मेरा नाम है जवाहर अहमद वानी, मैं यहाँ पालने में रहता हूँ, नौगाम पुलिस स्टेशन में। किस तरह का धमाका था, किस तरह से आप वहाँ पहुंचे, क्या कुछ मंजर था? हम रात को सोए थे 11 बजे 20 मिनट का, ऐसे धमाका हुआ कि बहुत जोर धमाका हुआ कि हमको पता चला कि शायद एयर ब्लास्ट हो गया। फिर हमने नीचे देखा किसी की आवाज़ नहीं था, कुछ नहीं था। बाद में हम बाहर निकल के हमने देखा पुलिस स्टेशन में आग लग रही। बाद में हम वहाँ पे गए, सारे कॉलोनी के हमारे शीशे पूरे कॉलोनी में टूट गए। हमारे लेबर भी यहाँ रहते थे, दर्जी का काम कर रहा था, इसके 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, तो इसका घर उसी पे चलता था। इन्होंने सवेरे इसको बुलाया था थाने में कुछ सिलाई करने के लिए, उसके बेस पे गया था। दिन को ये नमाज़ पढ़ने भी आया था, मस्जिद में पैसे भी जमा किया। उसके बाद फिर शाम को खाना खा के वापस गया 9 बजे रात। तो फिर ये भी वहाँ पे शहीद हो गए, पुलिस के लोग भी हुए। फिर हम रात को वहाँ पे थे, जितने भी वहाँ पे डैमेज हुआ। उसके बाद हमने कुछ पार्ट्स वहाँ पे दूर दूर से 600 बहुत तबाही 600 मीटर के बाद में हमने वो रिकवर किया। एक बाजू मैंने खुद उठाया, पुलिस की एक बेचारा शहीद हुआ था, उसमें बहुत लोग, उसकी बाजू फिर हमने हैंड ओवर किया। वहाँ CIK के थे, SSP ताहिर अशरफ भट्ट भी था। और रात को स्पॉट पे वहाँ पे रात के 3 बजे तक हम सारे कॉलोनी वाले थे वहाँ सारे हम थे, कपड़े वाले हमने रिकवर करके बॉडी के जितने भी पार्ट्स था कहीं पे दूर दूर, वो हमने उनको हैंड ओवर किया वहाँ पे। अच्छा, ये जो टेलर है इनका क्या नाम है, क्या आप चाहते हैं अब? इनका नाम है मोहम्मद शफी परे, सनाप मोहम्मद सिद्दीक परे, वानबल नौगाम में रहते हैं। हम सरकार से अपील करते हैं कि इनका घर में गुजारा नहीं है, तीनों 2 बेटे और 1 बेटी है। 1 बेटी तो मेरे ऑफिस में इसकी काम कर रहे हैं, मगर उस पर क्या उसका गुजारा हो जाएगा? 10-15 हज़ार से क्या हो जाएगा? अब अलजी साहब से, अब यहाँ की सरकार से हम अपील करते हैं कि इसका एक का नौकरी मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो खुद गया नहीं वहाँ पे, इसको यहाँ पे बुलाया गया है थाने में किसी काम के लिए। चलो ये हमारा फ़र्ज़ बनता, हम भी हिंदुस्तानी है, हमारे कहीं पे भी पुलिस को कोई साथ देने के लिए जाना होगा, हम उसके लिए तैयार है। मगर जब वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा, उसके लिए सरकार को फ़र्ज़ बनता है उसको कि सपोर्ट करने के लिए, उसको फैमिली को सपोर्ट करने के, किसी घर में किसी को नौकरी देने के लिए हम अलजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और आपके चैनल के वसादत से यहाँ की सरकार को इससे भी हम अर्ज़ कर रहे हैं कि इनका बेनिफिट मिलना चाहिए, ताकि बेचारा रहे नहीं इस दुनिया में। तो नाज़रीन, ये बेसिकली मोहम्मद शफी परे के हमसाया है। हालांकि इनके हाथ में मोहम्मद शफी परे का फ़ोटो है, और इनका कहना है कि वो कल शाम जब ये धमाका हुआ था तब पुलिस स्टेशन में मौजूद थे, पुलिस की मदद कर रहे थे। हालांकि ये पेशे से टेलर है, और इनकी सरकार से अपील है इनके अहल खाना की तरफ तवज्जो दी जाए और उनको तनहा न छोड़ा जाए। न्यूज़18 के लिए नौगाम से मैं आबिद हुसैन। അതിനിടെ ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിലായി. പത്താൻകോട്ടിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ റയീസ് അഹമ്മദാണ് പിടിയിലായത്. MG മിഥുൻ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ്. മിഥുൻ, ഈ നൌഗാം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ അട്ടിമറി സാധ്യതകൾ തള്ളിയിരിക്കുകയാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ പോലീസ്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും പറയുന്നത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഊഹാപോഹങ്ങൾ വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ്.